A Rajasthan win is critical both for the Congress and for the BJP. For the Congress to show that their formula in Karnataka and Himachal was not a mere flash in the pan. A formula which will also show that a truce engineered by the top leadership, including Rahul Gandhi, can work as it did in Karnataka between Gehlot and Sachin Pilot. But for the BJP, it is going to be an attempt to set the narrative for 2024 as well. The BJP is also trying a new formula of not coming out with Vasundhara Raje Scindia as the CM face. The twin issues for the BJP against the Gehlot governance, which it thinks can work for it, are quota suicides plus paper bleak and the issue of women's safety. Will that work? Over the next half hour, I'm going to try and decipher what a Rajasthan election means for the both main political parties. पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करना, क्योंकि इतने काम हुए। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। 30-year tradition of 5 years BJP, 5 year Congress, that will come to an end. The Congress party will come back with a greater mandate than we had last time. Amidst the push for women's rights and the Griha Lakshmi card is the cold hard reality that women are simply not safe in this desert state. According to the Election Commission, of the 5.26 crore voters in Rajasthan, 2.51 crore are women. And each time a crime takes place against Lakshmi, the BJP raises a stink. शिक्षा और सुरक्षा, ये दोनों काज बीजेपी चला रही है यहाँ पे। पेपर लीक वाला केस और दूसरा जो महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के एक्ट हुए हैं, जो अत्याचार हुआ है, क्या आपको लगता है ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर शायद अशोक गहलोत के लिए थोड़ा बैकफुट पे लाएंगे? देखिए, कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण और पेपर लीक, युवा और किसान, ये और महिला सुरक्षा एक ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस को गांव में यात्रा निकालना तो दूर, गांव में जाना मुश्किल कर देगा। In this small village of Rahuwas in Dausa, the crowd outside the police station is watching as one of those who is supposed to protect them has been arrested for allegedly raping a 4-year-old. That's also precisely why some villagers feign ignorance. लड़कियों के बारे में, ये सुरक्षा के बारे में ये मामला बार बार उठता है, कहीं पे भी हो। अब यहाँ पे भी आप ही के गांव में ऐसा हुआ है और इसको काफी राजनीतिक टूल दिया जाता है। क्या आपको लगता है ये एक बहुत बड़ी समस्या है और नेताओं को इसके बारे में सोचना चाहिए, या सिर्फ ये चुनाव आता है तभी लोग इसके बारे में बात करते हैं? सर, ये मामला कोई जानकारी को, मेरे को कोई जानकारी नहीं। बट क्या आपको लगता है कि सिर्फ चुनाव के समय लोग बात करते हैं लड़कियों की सुरक्षा की? चुनाव का तो ये भी जैसे घटना कोई चुनाव से कोई इश्यू नहीं, चुनाव के साथ कोई मतलब नहीं होना, काय मतलब चाहिए। Just 500 meters away is the home of the child. They want justice, not politics. आपको अच्छा लगता है इस बात को लेके कि इसको अब राजनीतिक टूल दिया जाता है? हमें तो इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए मैडम, राजनीतिक मुद्दे बनाने नहीं है। बच्ची के लाभ, बच्ची के बाप का हाथ टूट गया यहाँ से। पुलिस वालों ने मारपीट की है। पुलिस वालों ने जब बचाव के लिए किया गया तो पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की है मैडम। हमको इंसाफ चाहिए बस। तो क्या केस दाखिल नहीं कर रहे थे ये लोग? केस दाखिल मैडम, उसको बचाया जा रहा था मैडम, उसको बचाया जा रहा था गाँव के लोगों के द्वारा, 4-5 पुलिस वालों के द्वारा उसको बचाया जा रहा था। इसलिए फिर जब माँ बाप जो मैडम जिसके साथ, हाँ, मैंने सुना कि काफी गांव वाले गए पुलिस स्टेशन पे, हल्ला किया, तब 3-4 हजार आदमी मौजूद थे यहाँ पे गाँव में जब आए थे। उसके बाद दबाव पे? हाँ, दबाव पे। तो आप कह रहे हो कि आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए हमें तो। Well, not many villagers were ready to open up and talk to me freely, and the reason is the accused is a sub-inspector of police. And that is what has made it even more of a political issue. When such incidents happen bang in the middle of the battle for Rajasthan, the BJP has a point to score against the Congress. In fact, if you look at the hoardings across the state, you'll notice women's safety is one big promise which is being made by the BJP. It's also being used to puncture not just Ashok Gehlot's governance, but also take pot shots at Priyanka Gandhi Vadra, who fought on the card of Ladki Hoon Lad Sakti Hoon in Uttar Pradesh. Incidentally, she was over here in Dausa a few days back, and that's the question which the BJP is asking. दिन प्रतिदिन पुलिस से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। जब बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा था तो पब्लिक का विरोध करना स्वाभाविक था, और
ये थाने पहुंच गए। अब जिस पे आरोप लगाया था उस भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉक्सो में बर्खास्तगी की मांग है। पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए, ये जनता की मांग है। Politics is quick, but justice can be slow. Bhavari Devi, for instance, has been waiting 30 years for justice. In 1992, Bhavari Devi was allegedly gang raped by some villagers while working in a field in an act of revenge because she was advocating against child marriage. 3 years later, all 5 of the accused were acquitted. But with the upcoming assembly elections focusing on women's safety in Rajasthan, Bhavari Devi's appeal has been fast-tracked. आजकल सब लोग बात करते हैं महिला शक्ति का, कि महिलाओं के खिलाफ कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको बुरा लगता है कि इतने साल हो गए लेकिन अभी भी आपको वो न्याय या जस्टिस नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था? अच्छो काई कर दे, औरतां न्याय नहीं मिलना चाहिए औरतां न्याय। लड़ाई लड़ रही छे, काम कर रही छे, घर को भी कर रही छे, बाहर को भी कर रही छे, फिर क्यों न्याय मिलन? या कारण तो सरकार बताओ मान भाई, क्यों न्याय मिलन मान? मैं कहीं आदमी को नहीं। तो आपने कोशिश की कि लड़ने की, आपके ऊपर दबाव भी हुआ होगा कि चुप रहो, कुछ मत करो? गला दबाव रही है बहुत ज्यादा, पण दबाव रह काई करे तो भी लड़ाई लड़ रही है, पण तो भी मारे कतरो हरजानो लाग्यो है 30-35 साल से। जे मां आज तक भी 1 फुट आड़गी को दी सरकार की दी ना हरजानो, मारे कम से कम 50-60 हजार को नुकसान है गई। लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया उनको तो, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन लिया नहीं गया, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी हुई नहीं, उनको बरी कर दिया गया। इस बात का आपको गुस्सा है? हाँ, छेसरी गुस्सा भाई। यार जान तो देतो ना, गुस्सा तो खूब है रियो से भाई। उनको दोषी उनको दंड की दियो ना, मोन की दियो से गांव में भी जे मैंने नर्स बिल्कुल बहिष्कार कर में दी, गांव में भी मन कोई कौन बुलावा। लेकिन आखिरकार शायद जो भी कारण हो, एक बार फिर से लोग शायद इनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, या आपको लगता है ये बहुत देर हो गई है? नहीं, अभी तो देर तो हुई है, बहुत लेट, 30-35 साल हो समथिंग। तो इसके बाद में जैसे न्यूज़पेपर वालों ने प्रेशर डाला है और स्टेट गवर्नमेंट पे भी चुनाव के अकॉर्डिंग पे प्रेशर लगा उन पे, सीबीआई ने भी कुछ प्रेशर डाला है, तो रिट लगा है। तो हमें दिक्कत नहीं है, चाहे सीबीआई का वकील, आपको न्याय चाहिए? हाँ, हमें तो न्याय चाहिए। But even after so many years, villagers of Bhateri refused to accept that she was raped. ये कि उसके साथ बुरा हुआ? जी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, हकीकत तो ये है, ईमानदारी बात तो, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। अब वो कहीं भी खड़ सके, खेबा को कहीं। तो अभी भी गुहार लगा रही है। मैं गई थी जयपुर उनसे मिलने, तो अभी भी कह रही है कि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। अब यार सारो पब्लिक जाने सब में ये कोई सब दुनिया से अंदाज हुआ। जहाँ पे कहा गया था कि भवरी देवी के साथ हुआ था, वो खेत में काम कर रही थी। जी, आपने सुना उसके बारे में? बिल्कुल झूठ है सब। अच्छा, बिल्कुल साफ ही झूठ है। लेकिन एक बार फिर से वो केस आ रहा है, एक बार फिर से रिट लगा है कोर्ट में कि इस बात की जांच होगी। उनका कहना है कि मुझे ना गांव वालों ने साथ दिया, धमकी हुई, और मेरे साथ जो हुआ सो गलत हुआ। कोर्ट का फैसला भी गलत है। It's in one of such fields that Bhavari Devi, many years back, was gang raped. She continues to wait for justice, as I spoke to her. But when I also met up with the villagers, they insist that this was merely Aapsi fight, and really she was not even raped. How does one discover the truth? In the battleground state of Rajasthan, women's rights, women's empowerment and their dignity has now become a big talking point. Will she finally get justice? Will her voice be heard after so many years? But that's not the only justice which the state is waiting for. Along with women's safety, the BJP is raising the paper leak issue, something which ironically one of Congress's own, Sachin Pilot too, had raised a few months ago. Till a few months back, the Adhigam Coaching Institute, which you're seeing right behind me, was a very flourishing one with a large number of students who were coming here to fulfill their dreams and their ambitions. But unfortunately, it had to be raised. And the reason was the huge controversy over the paper leak case, which is now emerging as one of the biggest political points in the battle for the state. Under pressure and after much criticism, this coaching center was brought down.
But the landscape is dotted with many such institutes which sell dreams. Many of the dreams are often crushed, and the BJP hopes to tap the anger of the youth. As per the Election Commission, about 66% of total seats in the state belong to the 18 to 35 age group. And many are angry and disillusioned. क्या हुआ था आपके साथ? मैम 2021 की वैकेंसी थी और 2022 में उसका पेपर लगा, रद्द हो गया। उसके बाद में फिर 2023-19 पर भी 2023 को CHO का पेपर लगा। जैसे पेपर देके बाहर निकले, पेपर व्हाट्सएप पे पहुंच चुका था। ना तो गवर्नमेंट ने उसको रद्द माना, ना उसका रिजल्ट आया। मतलब पेपर अभी तक रुका हुआ है मैम। मेरे साथ भी यही सेम घटना हुई थी। बस इनका CHO था और मेरा SI का पेपर था। SI का पेपर मेरा 2021 के अंदर हुआ था मैम, 3 चरणों में, 13, 14 और 15 सितंबर को। मेरा 14 सितंबर को पेपर था और मैम जैसे ही पेपर देके बाहर निकलते हैं, 15 सितंबर वाली शिफ्ट के दिन शाम को पता चलता है कि ये पेपर भी लीक हो चुका है। हॉस्टल में रहते हो? जी मैम, मैं यहाँ हॉस्टल घर से दूर है, तो घर वालों को बुरा लगा होगा? बहुत बुरा लगता है मैम। उस परीक्षा के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मेरे जिस हिसाब से नंबर थे वो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन के नंबर थे। 4 साल से प्रिपरेशन करने में लग रहा था, फिर भी वो पेपर लीक होने के बाद में अगेन वापस स्टार्ट किया। सेकंड ग्रेड का पेपर स्टार्ट आया तो उसकी मैं प्रिपरेशन करने लगा। 2022 में वो पेपर भी लीक हो गया। वो रोडवेज वाला, वो बस वाला मामला हुआ था उसका। उस मामले में पूरा कंप्लीट होने के बाद मैंने मेरी पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं मेरी जॉब में वापस लग गया। ओह, तो अब आप एग्जाम नहीं देना चाहते? नो मैम। बड़े शहरों के अंदर रह के 10-12 हजार जहाँ पर मंथ के खर्च होते हैं, वहाँ हम नॉर्मल किसान परिवारों से आते हैं, तो यहाँ बड़े शहरों के अंदर उधार भी लिया किसी ने फैमिली से? उधार भी लेते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए? कई उधार भी लेते हैं और हमारे घर वाले मेहनत करके मतलब है ना, ये चाहते हैं कि भाई कहीं लग जाए। As one drives into coaching hub Kota, the mix of disillusionment with hope is evident. Students who come from as far as Assam, Mangalore and Bihar accept that peer and parental pressure and the prolific business which coaching has become has taken its toll. So you people are not under any pressure from your students that you have to win, you have to clear as soon as possible? Or is there a kind of parental pressure, family pressure and also from your peer group? I'm lucky that I don't have parental pressure, but yeah, of course, like there are a lot of peer pressure around you. Like there are thousands and lakhs of students sitting with you. There's always that, but if you take it in a good sense, it's better. Competition है तो pressure थोड़ा बहुत होता है, but आपके ऊपर कोई parents का दबाव या family या society, you don't feel that? Do you think it's very unfair? Because I also hear about cases of, say, for example, children committing suicide and all of that. तो जब आप ये देखते हो, ये सुनते हो, do you feel bad about it? Is it something you want to tell those kind of students that maybe you shouldn't do this? यस ऑफ कोर्स, मतलब ये तो बहुत गलत बात है ना। अगर आप किसी प्रेशर में हैं तो आप अपने टीचर से या जिससे आप कंफर्टेबल है कि हमें उन्हें बताना चाहिए, उन्हें ऑफ कोर्स बताना चाहिए हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सके। सुसाइड करना प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है मैम। We spoke to coaching icon Nitin Vijay, who inspired the character of Jeetu Bhaiya in the popular OTT series Kota Factory. कई बार हमें कोटा को शायद गलत रूप से प्रस्तुत करा गया है, पर मैं कह रहा हूँ सुसाइड से कोई कुछ नहीं बना रहा है मैम। क्यों शहर का एक भी, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो वहां काम करने वाला कोचिंग संस्थान में आदमी हो, चाहे हॉस्टल ओनर हो, चाहे यहाँ की आम जनता हो, उनके लिए तो नुकसान होता है। कोई भी एक भी आदमी, नॉट अ सिंगल वन जो ये चाहता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि किसी का भी इससे फायदा है। और सही बताएं तो हमारे शहर का अस्तित्व उन बच्चों की वजह से। कई बार ये जो प्रेशर आप बोल रहे हैं, ये प्रेशर, क्योंकि हमने बहुत सारे नोट्स देखे, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी लगातार मीटिंग्स होती हैं, ये मैक्सिमम टाइम ये प्रेशर पेरेंट्स से आ रहा होता है, बहुत ज्यादा। तो मैं कहता हूं शिक्षाविद के नाते हमें उन पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की बहुत आवश्यकता है। पेरेंट्स सब बन सकते हैं, बट क्या पेरेंटिंग सब सही कर सकते हैं? Kota is also the stronghold of Chief Minister Ashok Gehlot's closest aide, Shanti Dhariwal. He is the sitting MLA from Kota North and has been given a ticket again, despite some objections. BJP and his critics claim that most coaching institutes get away as they are either controlled or owned by Dhariwal supporters and friends. Dhariwal himself has issued some guidelines to ensure that no more suicides happen. He refuses to give BJP an edge on this issue. लोग बात करते हैं कोचिंग सेंटर्स के, स्टूडेंट्स के सुसाइड्स की, पेपर लीक की बात जो प्रधानमंत्री ने खुद कर कहा था। आपने बहुत सारा कदम उठाया, क्या आपको लगता है ये चुनावी मुद्दा बन सकता है क्योंकि बीजेपी इसको बना रही है? सवाल ये नहीं होता है भाई, कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमेशा से इस तरीके की हरकतें होती रही हैं। क्या समझा आप? क्योंकि आखिर आदमी जो है वो लड़का अगर मान ली ये जब देखता है कि मैं कंपटीशन में पास नहीं हो सकता, तो कई बार उसके मन में इस प्रकार की भावना आती है।
तो उसको रोकने के लिए भी कई प्रोग्राम चल रहे हैं, कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं जिससे कि जो सोसाइटी के जो केसेस हैं वो कम से कम हो। जैसे कुछ पार्क्स आपने शायद बनाए ताकि लोग वहाँ, कुछ पार्क भी आपने बनाए हैं ताकि बिल्कुल बाकायदा तो गाइडलाइन बनाई है, उस गाइडलाइन के अनुसार जो है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को चलना पड़ेगा, उनको रेस्ट देना पड़ेगा। ये कई पेपर लीक वाला मामला सर, पेपर लीक वाला मामला। पेपर लीक देखिए राजस्थान में थोड़ी हुए हैं, कहाँ नहीं हुए, कौन सी स्टेट में नहीं हुए, क्या मध्य प्रदेश में नहीं हुए, क्या गुजरात में नहीं हुए। लेकिन ये जितने भी पेपर लीक हुए हैं उन सब के मुलजिमों को सबको गिरफ्तार किया गया। 200 से ज़्यादा आदमी मुलजिम गिरफ्तार हैं आज। क्या तो पेपर लीक का निश्चित तौर पर ये हर जगह होता है। राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा आपको लगता है? आर्मी में हो गया भाई पेपर लीक, बताइए आप। तो आपको नहीं लगता ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा? बनाने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या पेपर लीक नहीं हुए? In 2018, the slogan which gained momentum against the Vasundhara Raje government was "Modi tumse bair nahi, Vasundhara tumhari khair nahi." That slogan is now being rephrased in 2023. Now it's Gehlot tumse bair nahi, Mantri tumhari khair nahi. Or that the anger against Gehlot is much less than the one against his ministers and MLAs. Corruption charges and unfulfilled promises are some of the chief complaints. But Gehlot has found it difficult to replace some of his closest aides, like Shanti Dhariwal, who was one of the 3 who refused to attend the CLP meeting, which could have seen a change of power. बात करते हैं मुख्यमंत्री की और सचिन पायलट की, और मुझे याद है आपने सचिन पायलट के बारे में भी कहा था, लेकिन जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात भी कहा गया था इस बार शायद आपको टिकट इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि आप तीनों जो नेता थे वो आप लोग CLP की बैठक में नहीं गए थे। देखिए वो तो मुद्दा ख़त्म हो चुका है, मैंने उसके लिए सॉरी फील कर ली, बात ही ख़त्म हो गई, उस मुद्दे पर बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बार अगर कांग्रेस जीतती है, आप चाहते हो कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने? मैं ये नहीं कह सकता, हाईकमान जिसकी मर्जी होगी वो बनाएगा। Then the corruption allegations hit closer home when FEMA violation charges came up against the Chief Minister's son, Vaibhav Gehlot. You know of those FEMA charges and all of that against Vaibhav Gehlot. You think that's a political bitch hunt as a Chief Minister? 100%. 12 साल पुराना केस, just before the eve of the elections, you start issuing notices. 95% of all people interrogated, raided or given notices by the ED are from the opposition. In Sachin Pilot's stronghold Tonk, many of his supporters pitched for Gehlot fir se, but admit that time was wasted in the Pilot-Gehlot rivalry. आपको लगता है कि बहुत वक्त बर्बाद हो गया ये पायलट और गहलोत की लड़ाई में? हाँ, कुछ फर्क तो पड़ा है। नहीं लड़ते तो ठीक रहता? हाँ, नहीं लड़ते तो शायद बेहतर होता। अच्छा बाबू, एक बात बताइए कि चुनाव में दोनों पार्टियां बहुत सारा वादा करते हैं, हाँ, कि हम पैसा डालेंगे अकाउंट में, महिलाओं के लिए ये करेंगे, नौकरियां देंगे। जब आप लोग वोट डालने जाते हो तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि हमें अपने नेता से क्या चाहिए? देखिए, जनता नेताओं से विकास चाहती है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार, दूसरा मुद्दा होता है महंगाई, तीसरा होता है सामाजिक सुरक्षा। इन 3 मुद्दों को विशेष तौर पर देखती है। चौथा जो मुद्दा होता है वो मेडिकल का होता है, और मेडिकल के हिसाब से जो गहलोत साहब ने किया है भारत में मिसाल है। अजी साहब, हमारे जो यहाँ पे अभी मेहता साहब जो खड़े हुए हैं, ये मेहता साहब तो ऐसा काम करते हैं। हमारे यहाँ पे 18 महीने यहाँ की जितनी भी दुकानें हैं, होटलें वगैरह, 20 महीने इन्होंने बंद करवाए। यहाँ पे बेचारे गरीब परेशान दिए 20 महीने। आपको लगता है गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई नहीं होती तो कांग्रेस के लिए और अच्छा होता? अजी फिर तो कांग्रेस को कोई हरा ही नहीं सकता था। अच्छा, तो आपको लगता है कि उनकी लड़ाई से फर्क पड़ा है? हाँ, थोड़ा फर्क तो है। पूरे राजस्थान में बीजेपी आई। अच्छा दीदी, अब ये कह रहे हैं बीजेपी आएगी, आप लोग कहते चलो ये इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भारतीय इतिहास याद नहीं है। पाकिस्तान में एक छोटी सी एयर स्ट्राइक करने पे ये बिधक जाते हैं कि बहुत कुछ किया है। सन 1971 में 99,000 पाकिस्तानी सैनिक कर्नल अरोड़ा के सामने यूँ खड़े थे, वो इन बच्चों को नहीं मालूम।
Hence the joint rallies and show of unity in the midst of campaigning. एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। काफी अच्छी तस्वीर थी, सुखद तस्वीर है सर। Not that all is smooth in the BJP camp. The sidelining of Vasundhara Raje, the many probables like CP Joshi, Rajendra Rathore and Gajendra Singh Shekhawat is making the projection of a CM face very tough. आपके यहाँ कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि आप लोगों ने कोई सीएम फेस अभी तक प्रोजेक्ट भी नहीं किया है और बहुत सारे दावेदार हैं और कांग्रेस का बार बार यही कहना है कि वहाँ पे इतने लोग दावेदार हैं कि पूरा पार्टी को वो लोग ले डूबेंगे। ये लोकतंत्र है और आपके यहाँ कौन है ये डिक्लेयर क्यों नहीं करते? आपके यहाँ कौन है? अशोक गहलोत जी हैं कि रंधावा जी हैं, डोटासरा जी हैं कि सचिन पायलट जी हैं या रघु शर्मा जी? कौन है? आप डिक्लेयर करिए ना, क्यों डर रहे हैं? It's an election which will see important ramifications for all stakeholders, but for the people, only rosy roti matters. क्या इलेक्शन के दौरान पगड़ियों का डिमांड बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का चुनाव और कांग्रेस का चुनाव जब भी टकरार होता है दोनों में, तो दोनों को उस टाइम है ना चुनाव के टाइम प्रचार के हिसाब से डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। बीजेपी के लिए बीजेपी और कांग्रेस के चुनाव में सिर्फ क्योंकि इन पगड़ियों के भी अलग कलर होते हैं। अच्छा। केसरिया कलर, आप केसरिया कलर बीजेपी का और जो मल्टी कलर जो होता है वो कांग्रेस। तो किसके सर पे इस बार पगड़ी सजेगी, ये किस किस मुद्दे पे फैसला होता है? मैम वैसे तो मुद्दा तो एक ही है, गरीब और अमीर। जो हमें जो सस्ता हमें हमारा ध्यान रखेंगे। सरकार एक माई बाप होती है कि हम उनके बच्चे हैं, सरकार हमारी माई बाप है। जो हमें अच्छे तरीके से रखेंगे, जो अच्छे तरीके कर रहे हैं हमारे लिए, हम उनका साथ देंगे। Okay, so my pagdi is set over here, but over the last half hour, I've been trying to get you little trains of thought across the state. And the question which we are asking is that kiske sar pe hogi is baar ki pagdi, or who's going to wear the crown this time round? There are multiple issues which have been picked up from across the state. Whether it's the paper leak issue, whether it's crime against women, the law and order, corruption allegations, or is it going to be sheer anti-incumbency and a restlessness with the Gehlot Sarkar? Thank you so much for watching.